છોટાઉદેપુર જિલ્લાની સંખેડા બેઠક ઉપર ભાજપના ઉમેદવારના સમર્થનમાં યોગી આદિત્યનાથે નસવાડી ખાતે જનસભા સંબોધી હતી અને આ ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રવાદ વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રવિરોધીઓને ઉખાડી ફેંકવા હાંકલ કરી સંખેડા વિધાનસભાના નાગરિકોને ભાજપને વિજયી બનાવવા ભારપૂર્વક અનુરોધ કર્યો હતો। વિધાનસભા ચૂંટણી અંતર્ગત છોટાઉદેપુરમાં આજથી ભાજપના ઝંઝાવતી પ્રચાર કાર્યનો શુભારંભ ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે નસવાડીથી કર્યો છે। સંખેડા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર અભયસિંહ તડવીના સમર્થનમાં યોજાયેલ જાહેર સભામાં યોગી આદિત્યનાથે ગુજરાતીમાં પ્રવચન કરી વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના ગુજરાત મોડેલની આજે દેશ વિદેશમાં અમલવારી થઈ રહી હોવાનું જણાવી આ ચૂંટણીમાં રાષ્ટ્રવાદ વિરુદ્ધ રાષ્ટ્ર વિરોધીઓને ઉખાડી ફેંકવા હાકલ કરી સંખેડા વિધાનસભાના નાગરિકોને ભાજપને વિજય બનાવવા ભારપૂર્વક અનુરોધ કર્યો। યોગીએ નરેન્દ્ર મોદી અને ભાજપની સિદ્ધિઓ ગણાવતા આદિવાસી મહિલા દ્રૌપદી મુર્મુ દેશનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન આપ્યું હોવાનું જણાવી આદિવાસી સમાજને ગર્વ અપાવવાની વાત કહી। વધુમાં યોગી આદિત્યનાથે શ્રીકૃષ્ણ, ગાંધી, સરદાર અને લોક લાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈની જન્મભૂમિ એવા ગુજરાતમાં આવતા ધન્યતાની લાગણી અનુભવતા હોવાનું કહ્યું। જાહેર સભામાં તેઓએ લોકોને સવાલો કરતા કહ્યું કે શું કોંગ્રેસ શાસનમાં હોત તો કાશ્મીરમાં કલમ 370 હટી હોત, અયોધ્યામાં રામ મંદિર બન્યું હોત, શું કાશી વિશ્વનાથ મંદિરની ભવ્યતા આટલી નીકળી શકી હોત। કોંગ્રેસ ઉપર પ્રહાર કરતા યોગીએ કોંગ્રેસની સરકાર હોત તો કોરોના કાળની વેક્સિનના અને લોકોને અપાતા મફત રાશિના રૂપિયા ખાઈ જતા હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો। આજે નસવાડી ખાતે ઉત્તર પ્રદેશના માનનીય યશસ્વી મુખ્યમંત્રી નસવાડી પધાર્યા અને સંખેડા વિધાનસભાના 10,000 જેટલા મારા કાર્યકર્તાને સંબોધન કર્યું। મોદી સાહેબના ગુજરાતમાં મોદી સાહેબની જે યોજનાઓ છે એ પણ એમને ઉલ્લેખ કર્યો। અત્યારે આજે સંખેડાની પ્રજા, સંખેડાનું કમર, સંખેડાના કાર્યકર્તાઓ મોકલવા કટિબદ્ધ બન્યા છે। ત્યારે આજે સંખેડાની વિધાનસભાનું કમર ફરીથી ગાંધીનગર મોકલવાની ખાતરી અમારા કાર્યકર્તા આપી છે। ભારત માતા કી જય। અને આજે અમારા કોંગ્રેસ છોડીને અમારા જિલ્લા પંચાયતના માજી પ્રમુખ લક્ષ્મીબેન નટુભાઈ બારિયા અને અમારા કોંગ્રેસ સમિતિના ઉપપ્રમુખ કોંગ્રેસના શ્રી મેહુલભાઈ પટેલ એમના કાર્યકર્તા 50 જેટલા કાર્યકર્તાઓ સાથે જોડાયા છે। ત્યારે અમે આવકારીએ છીએ, એમનું અભિવાદન કરીએ છીએ। ભારત માતા કી જય। मैं इस धरती को नमन करता हूं जिन्होंने नरेंद्र भाई मोदी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को दिया है, जिनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, बिना भेदभाव के भारत के प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार प्राप्त हो रहा है। हम अभिनंदन करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी वनवासी परिवार की एक महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पद पर बिठा करके भारत के हर वनवासी, गिरिवासी और उन बंधु बांधवों का सम्मान बढ़ाया है जिन्होंने कभी भगवान श्री राम की सेना में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना का संघनाद किया था। मैं अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके दृढ़ इच्छा शक्ति और जिनके विजन के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
गुजरात की धरती है भाइयों बहनों। अगर 1947 में भारत के सभी गणराज्यों को एकीकरण करने में इसी माटी के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, तो सन 2019 में कश्मीर से आतंकवाद की पर्याय बनी धारा 370 को हटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इसी धरती माटी के सपूत भारत के लोकप्रिय और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया है, भाइयों बहनों, आतंकवाद की ताबूत पर वह अंतिम कील है और आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हमेशा के लिए होगा। यह आर्थिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और खास तौर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को मिलना और भारत का किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। हम विकास कराएंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। यह आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसी संकल्प को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और मैं भी आज आपके बीच इसी संकल्प के साथ आया हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा तमाम दल आते हैं, चुनाव के समय बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो संकट के समय आपका साथी है वही आपका सच्चा साथी है। हर अनुसूचित जाति के परिवार को, देश के अंदर 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, फ्री में वैक्सीन देने का काम भी किया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो भाइयों बहनों राशन का पैसा भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी ये सब खा जाते, किसी गरीब को नहीं मिलता। आज तो हर गरीब को आवास उपलब्ध हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब को हर घर नल की योजना का लाभ मिल रहा है। आज हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू जल रहा है। आज हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है और वन बंधु कार्यक्रम के अंतर्गत हर वनवासी बंधु को, जनजातीय बंधु को शासन की योजना के साथ जोड़ करके आज लाखों करोड़ रुपए उनके उन्नयन के लिए गुजरात के अंदर भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके उन्नयन के लिए कार्य कर रही है। एक और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर, देश के राष्ट्रपति के पद पर एक वनवासी और जनजातीय परिवार से जुड़ी हुई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बना करके भारत का गौरव बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो दूसरी तरफ गुजरात के अंदर भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का एक नया हिस्सा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज हम सब आपके पास आए हैं। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 को हटा पाती? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? और क्या कांग्रेस
सरदार साहब का जो सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है गुजरात में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। क्या कांग्रेस बना पाती? कांग्रेस ने तो सरदार साहब को भी सम्मान नहीं दिया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले, नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले गुजरात में क्या होता था? दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, अराजकता फैलाने का कार्य होता था, लूट खसोट थी। पिछले 20 वर्षों के अंदर गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। गुजरात विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सुरक्षा का एक मॉडल दे रहा है, विकास का एक मॉडल दे रहा है, लोक कल्याण का एक मॉडल दे रहा है, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा दे रहा है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का एक नया गुजरात है। છોટાઉદેપુરના નસવાડી ખાતે યોગી આદિત્યનાથની સભામાં લોકો ઢોલ નગારા સાથે આવ્યા છે। આપ તસવીરોમાં જોઈ રહ્યા છો, આદિવાસી સમાજના લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે, નાચગાન કરી રહ્યા છે। સાથે સાથે મહત્વની બાબત એ છે કે યોગી આદિત્યનાથ અને ભાજપનું એક પ્રચંડ વાવાઝોડું હોય તે રીતના જે આદિવાસી સમાજના લોકો નૃત્ય કરી રહ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં લોકો નૃત્યમાં જોડાયા છે। યોગી આદિત્યનાથ આવ્યા છે અને તેઓની સભામાં જે હજારોની સંખ્યામાં મેદની ઢોલ નગારા સાથે આવ્યા છે। હાલ જે સંખેડા વિધાનસભામાં છે પહેલી સભા યોગી આદિત્યનાથે નસવાડી ખાતે સંબોધી છે અને જેને ભારે ઉત્સાહથી આદિવાસી સમાજના લોકોએ સભા સાંભળી છે। રફીક તાણીવાલા, ગુજરાત ન્યૂઝ।